Good morning, everyone. This is the sum we will be doing now. Bombay Traders, Bombay, opened a branch at Nagpur on 1st January 2018. The following information is available in respect of the branch for the year 2018. So, Bombay Traders who set up a branch in Nagpur on 1st January 2018. This is a new branch, so there will not be any opening assets or opening liabilities. Goods sent to branch is 37,500. Cash sales at the branch 25,000. Credit sales at the branch 30,000. Salaries of staff paid by head office. This expenses paid by head office. Office expense of the branch paid by head office. We have cash remittance to branch for petty cash. So this is expense for petty cash. Branch has head office has given to branch amount for petty cash, amount to pay salaries, and amount for office expenses. Then we have petty cash at branch at the end, debtors at branch at the end, and stock at branch at the end. So here what is missing is हमें क्रेडिट सेल दिया है एंड हमें कैश सेल दिया है बट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज नॉट गिवन बिकॉज हम क्रेडिट सेल में हमने पूरे फुल ईयर हमने इतना क्रेडिट सेल किया बट वो क्रेडिट सेल से हमें कितना कलेक्शन हुआ डेटर से दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रेमिटेंस टू द हेड ऑफिस बाय द ब्रांच जब ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा वापस करता है तो वो क्रेडिट सेल नहीं वापस कर सकता ही जो क्रेडिट सेल में से जितना डेटर से कलेक्शन हुआ है वो ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर सकता है सो हियर विल हैव टू कैलकुलेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑल्सो उसके लिए हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा सो in the books of head office in the books of Bombay Traders we have to prepare branch account और ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त हमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने का भी ये सब में ज़रूरत है क्योंकि ब्रांच अकाउंट में कलेक्शन फ्रॉम डेटर चाहिए एंड दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन so therefore we will require branch daters also so let us insert the columns adjust the columns so here particulars rupees particulars rupees so यहाँ पे the same thing I will copy here to balance brought down this is यहाँ पे हम असेट्स का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं बट बिकॉज दिस इज अ न्यू बिजनेस यहाँ पे ना ओपनिंग बैलेंस असेट का होगा ना ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का बिकॉज द बिजनेस इज न्यू सो न्यू फॉर ब्रांच में ओपनिंग असेट्स नहीं होगा so here last year ka closing becomes the opening of the current year then two goods sent to branch goods sent to branch is how much 37,500 then we have cash sales so cash sales किधर आएगा cash sales यहाँ पे by कैश बैंक ये क्या है हमारा रेमिटेंसेस है उसमें इधर लिखेंगे कैश
sales. How much is the cash sales? It is 25,000. Next जो हमें चाहिए वो है collection from debtors. ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है. उसके बाद हमें क्या दिया है? क्रेडिट सेल दिया है. सो क्रेडिट सेल विल कम इन द डेटर अकाउंट. क्रेडिट सेल से क्या होता है? डेटर इंक्रीज होता है. whenever we sell in credit our debtor increases. so credit sale branch account में तो नहीं आता, but credit sale will come here in the debtor account debit side. डेटर इंक्रीज होगा, जितना उधार में सेल करेंगे उतना डेटर इंक्रीज होगा. डेटर इज अ asset. Asset means it will come in the credit sale, will come in the debit because debtor increases. Then we have salaries paid. तो इधर लिखेंगे टू कैश बैंक. किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए. तो एक्सपेंसेस में क्या है? एक्सपेंसेस में सैलरीज है. फिर क्या है एक्सपेंसेस में? ऑफिस एक्सपेंसेस है. देन वी हैव, देन देखो पेटी कैश. पेटी कैश एक्सपेंसेस. सो ये तीन एक्सपेंसेस हैं. सो हियर अमाउंट इज गिवन. क्या क्या? सैलरी से 7,500, ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000 एंड पेटी कैश एक्सपेंसेस 3,000. मतलब ब्रांच को हेड ऑफिस ने सैलरी के लिए पैसा सेंड किया, ऑफिस एक्सपेंस के लिए सेंड किया, पेटी कैश एक्सपेंस के लिए सेंड किया. नाउ व्हाट इज गिवन? Now closing assets are given by balance carried down. ये assets का closing है. What is that? petty cash है. closing में से दिखा सकते हैं. petty cash is there. Then debtors is there. Then stock is there. What is the amount? Petty cash is 250. Debtor is 2,500 and stock is 13,500. तो हमने ये लिखा. अभी डेटर अकाउंट बनाएंगे तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में रहता है. जैसे देखो असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में ही लिखा, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में रहता है तो इट इज बाई बैलेंस कैरीड डाउन. लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाई बैलेंस बॉट डाउन. और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा ऑपोजिट साइड में रहता है, बाई टू बैलेंस कैरी डाउन. बट यहाँ पे लाइबिलिटी का ना ओपनिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस है. बट डेटर का यहाँ पे दिया है क्लोजिंग बैलेंस 2,500. देखो यहाँ पे डेटर क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल किया 30,000, बट एट द एंड ऑफ द ईयर डेटर से सिर्फ 2,500 मिलना बाकी है. डेटर मतलब टू हुम वी सेल फॉर क्रेडिट. हमने क्रेडिट में 30,000 का सेल्स किया, बट एट द एंड वी हैव ओनली पेंडिंग 2,500 टू बी रिसीव फ्रॉम द डेटर. मीन्स इन द ईयर वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज देयर. collection is there. How much will be the collection? Debit side is heavy, so we will write 30,000. फिर माइनस करो, कलेक्शन कितना है? 27,500 विच इज द बैलेंसिंग फिगर. तो यहाँ पे लिखेंगे 27,500. 27,500. So with this
एवरीथिंग इज डन। अब क्या करेंगे, ये डेटर अकाउंट, ये अपना डेटर अकाउंट तो बंद हो गया, तो ब्रांच अकाउंट को बंद करेंगे। वी कैन सी द क्रेडिट इज हैवी, सो ऐड करो 25,000, 27,500, 250, 2,500 plus 13,500. How much we are getting? 68,750. We are getting 68,750. So डेटर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, हमने ऑलरेडी हमारा सिंगल एंट्री चैप्टर, इट वाज द फर्स्ट चैप्टर इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स, वहाँ पे वी हैव लर्नड। सो यहाँ पे अभी बंद करते वक्त व्हाट वी गेट, अब यहाँ पे ब्रांच अकाउंट को बंद करना है, तो टू बैलेंस, सॉरी यहाँ पे क्या आता है, आई एम वेरी सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग figure. How much we are getting balancing figure? माइनस करो 68,750 से 37,500, 7,500, 6,000 and 3,000. We will get 14,750. With this sum is done. This is the balancing figure. Now, after that sum, let us discuss the format or the pro forma of branch account, when goods are transferred, या goods are sent at इनवॉइस प्राइस। हेड ऑफिस से ब्रांच में जब गुड्स आता है इनवॉइस प्राइस में, नॉर्मली सी 1 minute, दिस फॉर्मेट शुड नॉट कम हियर, here we will discuss it here. So यहाँ पे देखो, हमने देखा that every time we have seen branch में जो goods transfer करते हैं that is coming from the head office. Now in the previous sums we have seen that the transfer होता है, मतलब goods जो भी branch को मिलता है is sent by the head office. But if what will happen if the goods are transferred in invoice price? Invoice price means cost plus profit. तो हमारा ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, दैट वी विल सी नाउ. So here particulars, rupees, particulars, rupees. So here what we will do, सबसे पहले अभी तुम लोग को भी फॉर्मेट पता है, यहाँ पे हम बैलेंस बॉट डाउन, व्हाट इज दिस इज द ओपनिंग असेट्स, करेक्ट. यहाँ पे ओपनिंग असेट आता है, एंड ओपनिंग असेट में नाउ वी हैव द ब्रांच स्टॉक, एंड दिस स्टॉक विल बी एट इनवॉइस प्राइस. नॉर्मली अभी तक ये जो स्टॉक होता था ये कॉस्ट प्राइस में रहता था, बट हियर फ्रॉम दिस सम क्या होगा, अगर ट्रांसफर इज एट इनवॉइस प्राइस. ना व्हाट इज इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. इनवॉइस प्राइस मतलब क्या, अवर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. बाकी क्या होता है इधर, बाकी कौन सा असेट्स हो सकता है, डेटर, कैश, फिक्स्ड असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब कैन बी हियर. सो ये सब असेट यहाँ पे हो सकता है. अब हम लोग यहाँ पे आते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये नॉर्मली ये किसके लिए रहता है, लाइबिलिटी के लिए. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज स्टॉक रिजर्व
What is stock reserve? That is the profit involved in the stock. मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस में स्टॉक को रिकॉर्ड करना है और बाजू में स्टॉक रिजर्व बताना है. स्टॉक रिजर्व मीन्स व्हाट? स्टॉक रिजर्व में इट इज लोड और प्रॉफिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक. लोड बोलते हैं. प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं. लोड ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे हमारे पास, इसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट है, मतलब सपोज मैं ये स्टॉक का कॉस्ट प्राइस 100 है, बट मैं यहाँ पे सेल कर रही हूँ 125 में. मैं बाहर वालों को भी 125 में सेल करती हूँ, बट ब्रांच इज द पार्ट ऑफ द हेड ऑफिस. यहाँ पे भी मैंने इनवॉइस प्राइस में ट्रांसफर किया, सेलिंग प्राइस में. तो यहाँ पे 125 100 रुपीज कॉस्ट, 25 रुपीज प्रॉफिट. बट यहाँ पे स्टॉक रिजर्व में सिर्फ 25 रुपीज प्रॉफिट आएगा. स्टॉक रिजर्व मीन्स द लोड इन्वॉल्व इन द opening stock, the profit element involved in the opening stock. Yes, I assume you all understood this. यहाँ पे हम इनवॉइस प्राइस में स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे और ऑपोजिट साइड में जो प्रॉफिट इन्वॉल्व रहेगा वो स्टॉक रिजर्व में बताएंगे. स्टॉक रिजर्व में क्या रहेगा? प्रॉफिट इन्वॉल्व इन द ओपनिंग स्टॉक. इसके बाद यहाँ पे कौन सा लाइबिलिटीज आता है? क्रेडिटर्स आता है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो नाउ व्हाट आई वांट टू शो हियर, यहाँ पे ये अमाउंट का हमने अमाउंट का एक्स नहीं बताया बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट. वी विल हैव टू शो द अमाउंट बाय एक्स. सो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व, यहाँ पे क्रेडिटर्स और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. तो ये गुड्स जो ब्रांच में सेंड किया ये भी इनवॉइस प्राइस में रहेगा. जो हेड ऑफिस गुड्स सेंड करता है ब्रांच को, वो किस में रहता है? it is at invoice price. That means invoice price means cost plus profit. तो ऑपोजिट साइड में हम क्या बताएंगे? बाय गुड्स सेंट टू, मतलब यहाँ पे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच सेम लिखना है. एंड यहाँ पे ये क्या रहेगा? इट विल बी लोडिंग. 1 minute. It will be load. Load means profit. Load in goods. Load in goods sent to branch. मतलब जो हमने गुड्स सेंड किया ब्रांच को वो इनवॉइस प्राइस में है, तो ऑपोजिट साइड में उसका लोड लिखेंगे. लोड मतलब प्रॉफिट इन्वॉल्व. मतलब अगर 100 रुपीज का कॉस्ट है, मैं इनवॉइस प्राइस में सेल कर रही हूँ, मतलब सपोज मैं 125 में सेल कर रही हूँ, कॉस्ट के ऊपर जो सेल करते दैट इज द प्रॉफिट. एंड तो वो प्रॉफिट जो है हम ऑपोजिट साइड में उसको दिखाएंगे लोड इन गुड्स सेंट टू ब्रांच. दैट इज प्रॉफिट. लोड मीन्स प्रॉफिट. सो अलग से प्रॉफिट बाजू में दिखाएंगे. एंड सो तो यहाँ पे क्या रह सकता है? ये गुड्स सेंट टू ब्रांच क्या रह सकता है? गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस. और क्या हो सकता है? गुड्स टू ब्रांच बाय अनदर ब्रांच. दूसरे ब्रांच से गुड्स ट्रांसफर हुआ है तो वो भी इनवॉइस प्राइस में हो सकता है. हेड ऑफिस से भी आ सकता है या दूसरे ब्रांच से भी आ सकता है. और एक चीज़ अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई विल शो हियर, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच. ये क्या है? ये रिटर्न्स है. ये क्या है?
रिटर्न्स है, बट दिस इज ऑल्सो एट इनवॉइस प्राइस। मतलब जब गुड्स हमने जब व्हेन गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस और अनदर ब्रांच इन इनवॉइस प्राइस, जब रिटर्न करेंगे तो वो भी इनवॉइस प्राइस में ही होगा। मतलब मैंने 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स खरीदा, उसमें से 10 यूनिट्स मैंने रिटर्न किया, तो जब गुड्स सेंड आर एट इनवॉइस प्राइस, दिस रिटर्न ऑल्सो विल बी इन इनवॉइस प्राइस। तो जब भी इनवॉइस प्राइस रहेगा तो ऑपोजिट साइड में हमें क्या करना है, उसके साथ जो उसमें जो प्रॉफिट इन्वॉल्व है उसका लोड निकालना है। तो यहाँ पे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये क्या है, लोड ऑन गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। तो हर एक जगह पे, मतलब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, ओपनिंग स्टॉक में भी इनवॉइस प्राइस है, मतलब प्रॉफिट इन्वॉल्व, वो स्टॉक रिजर्व में बताएंगे। और जो गुड्स हम सेंड करते हैं हेड ऑफिस से ब्रांच, उसमें भी अगर प्रॉफिट है तो उसका लोड बाजू में, गुड्स रिटर्न हुआ है उसमें भी प्रॉफिट होगा तो उसका लोड ऑपोजिट साइड में। अभी हम लोग को एक और चीज अभी ब्रांच के फॉर्मेट में ही रहता है, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक अकाउंट। ये क्या है, एक्सपेंसेस है जो हेड ऑफिस ने पे किया है, एक्सपेंसेस बाय एचओ, बराबर, एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस करता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाय कैश बैंक, इसको बोलेंगे रेमिटेंसेस, जो लास्ट में ब्रांच वापस करेगा हेड ऑफिस को। रेमिटेंस कैश सेल में हो सकता है, एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ऐसे दो पार्ट्स भी हो सकते हैं, या डायरेक्टली दिया है रेमिटेंसेस। नाउ यहाँ पे एक और चीज होता है बाय कैश बैंक, और वो क्या होता है, सेंट, इट इज सेंट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायरेक्टली पेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस बाय ब्रांच कस्टमर्स। इसे लिखते हैं ना, जब ब्रांच कस्टमर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को पे करते हैं तो वो भी ब्रांच अकाउंट में आता है। तो एवरीथिंग इज सेम, ओनली ये हमें इनवॉइस प्राइस में जो ट्रांसफर होता है उसका लोडिंग ऑपोजिट साइड में लिखना है, उसका लोड, उसका प्रॉफिट ऑपोजिट साइड में लिखना है। नाउ लास्ट में व्हाट विल कम, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्लोजिंग असेट्स है, ये क्या है, क्लोजिंग असेट्स है। इसमें क्या आएगा, इसमें सबसे पहले तो स्टॉक, ब्रांच स्टॉक, लेकिन ये कौन से प्राइस में रहेगा, इनवॉइस प्राइस में। किस में रहेगा, इनवॉइस प्राइस में। एंड इसके बाद क्या हो सकता है, किसका किसका क्लोजिंग हो सकता है, डेटर का, कैश का, फिक्स एसेट का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ये सबको अमाउंट में दिखाते, अमाउंट नहीं दिया इसलिए एक्स एक्स एक्स, एंड इसके बाद द ऑपोजिट साइड, यहाँ पे हमने एक्स एक्स नहीं बताया, एंड इसके बाद अभी इधर टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये लाइबिलिटीज का होता है। और इसमें ही हम एक चीज बताएंगे, दैट इज स्टॉक रिजर्व। ये क्या है, स्टॉक रिजर्व, ये लोडिंग है, लोडिंग है या लोड है ऑन क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द लोड और द प्रॉफिट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है,
क्लोजिंग एसेट का, उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो यहाँ पे लेंगे। स्टॉक रिजर्व किधर होता है? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में। बाकी सब में यहाँ पे टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो यहाँ पे बाई गुड्स एंड टू ब्रांच, लेकिन दिस इज द लोड, दैट इज द प्रॉफिट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएगा, लाइबिलिटीज है ना, और क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसको यहाँ पे बताएंगे, अमाउंट बताएंगे इसका, अमाउंट एंड द अमाउंट। फिर इसको बंद करना है, इसको बंद करके हमें क्या मिलेगा? अगर क्रेडिट साइड हैवी है, अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ये प्रॉफिट है। अगर क्रेडिट हैवी रहेगा तो, और अगर डेबिट हैवी रहेगा तो कहाँ पे आएगा बैलेंस? दिस विल बी द नेट लॉस। यहाँ पे दिखाएंगे और बोलेंगे इसको, दोनों नहीं आ सकता, ये फॉर्मेट है इसलिए मैं दोनों दिखा रही हूँ। दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर इफ डेबिट इज हायर, बैलेंसिंग figure. So with this the format is done. So I will highlight the profit and the loss. So this is the loss, चाहिए तो ऐसे दिखा सकते हो, this is what? This is net loss और this is net profit। डेबिट साइड में जब आता है बैलेंस तो इट इज नेट प्रॉफिट। तो इधर ब्रैकेट में ऐसे फॉर्मेट है, इसलिए ऐसे दिखाएंगे, ये क्या है? net profit. With this we will do the sums in the next lecture. With this I end today's lecture. Thank you very much everyone.